Hello, amazing people. I am Rashmi Ahuja. I am back on Divine Talks with Rashmi Ahuja, organized by Love Light Healing. Let's invite Reena Sen. She is an Akashic Record reader and workshop facilitator. Please join. Yeah, hello, ma'am. Hi. Finally. Yeah, finally. Yes. Uh, So, how are yeah, you doing? all good, all good. And thank you for inviting me for this evening to talk about something which over the years has become my soul work. So thanks a ton. Thank you so much for accepting my invitation, ma'am. I'm truly grateful that you have accepted my invitation. And, as per the guidance, I always follow my heart. My heart always guides me, and I follow that. And your name appeared. So today is my last session because I was guided to do 10 sessions only. And today is 11th. So Oh, I think it got extended only because of you. And good to thank see you you. after a long time. So, Yeah, yeah. Reena ma'am, tell me something about your journey as an Akashic record reader, Sure. workshop facilitator, how it started. Okay, let me first come clean about one thing that I never ever had any intention of getting into this path. Okay. So, by profession, I am a commerce graduate, a CA, and a lawyer. So, my whole professional journey has been with the other balance sheet, like the number crunching one. Okay. So, this was never a part of my conscious planning. But the whole thing started when my dad transitioned. In 2005, he transitioned after a very prolonged sickness. And he was a man who was very active, and also as an only child I had this question at that point in time, that did I miss out on doing something for him which I could have done. You know how we human beings are. We try to fix, we try to control, we try to figure out if something could be done. That led me actually to a journey where I had gone in for a past life regression therapy session for myself to understand my linkage with him. And as things turned out, while in that session, it was meant to be only a PLR session, but somehow my guides took me to a life between life. So the therapist was surprised, and it was a big aha moment for me because I still can remember the only word close to what I experienced then was bliss. So my guides had given me my soul book, my Akashic record, for me to connect and to receive vibrationally whatever questions I was searching for. So that was my first taste of the Akashic records. So like all souls have an Akashic record. Like we all have a compendium, so to say, of all our life times, life experiences, intentions, everything. तो जो सोल बुक है वो बेसिकली एक ऑडियो वीडियो जैसा है. हम ऑडियो वीडियो इस तरीके वाले के साथ में अभ्यस्त हैं, बट जिन एलिमेंट्स से हम बने हुए हैं, जो पंच तत्व जिनसे हम बने हुए हैं, उसमें एक एलिमेंट है, एक तत्व है आकाश का, ईथर. So ether has the capacity to record everything. तो वहां पे सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, जो हमारे इरादे रहे हैं, जो हमारे एक्शंस रहे हैं, जो हमारे इरादों और कर्म का जो रिपोकशन रहा है, जो कॉन्सिक्वेंस रहा है, उसका जो इफेक्ट रहा है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है. तो मेरी जर्नी आकाशिक रिकॉर्ड्स के सैम्पलिंग के साथ में शुरू हुई in 2008-9 when I had gone for that PLR session. Okay. तो मुझे उस समय पहली बार उसका एक्सपीरियंस हुआ. बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था रश्मि, एंड समहाउ उसके बाद मुझे बार बार लगता था कि मैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से वापस से कनेक्ट हूँ, बिकॉज ऑफ द शेयर ब्लिस दैट आई एक्सपीरियंस्ड. इट वाज लाइक बियॉन्ड ब्लिस. होते होते बाद में आई गॉट टू नो अबाउट अ टीचर. आई लर्न हाउ टू access my own records, and again as I said, मेरा कोई इरादा नहीं था आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बनने का या फैसिलिटेटर बनने का.
बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई गाइड्स, टू माई डिवाइन टीम, कि उन्होंने ये वाले बैलेंस शीट का काम भी करवा लिया है या करवा रहे हैं। जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है वो भी एक दूसरा बैलेंस शीट ही है, और वो टैली होना बहुत जरूरी है। फिजिकल बैलेंस शीट तो टैली होनी जरूरी है कंपनी के लिए, but for our own journey, our own balance sheet has to tally. Wow. So that is where the whole journey started. And of course, over the years, I literally ended up doing the work. So it was like 9 to 9. I was having my own professional as a CA work life. And then people would keep on coming for readings. तो readings होते गए, सीखती गई मैं, और फिर I came to a point where दूसरों को सिखाने का काम भी शुरू हुआ। अगेन बहुत मिरेकुलसली शुरू हुआ। आई वॉज हेजिटेटिंग बिकॉज मुझे ऐसा था अच्छी खासी जो भी काम है वो अपना एज अ सीए चल रहा है, कर रही हूँ। दिस इज ठीक है, अपने जानकारी के लिए, अपनी जर्नी के लिए हो गया, ठीक है, बट औरों के लिए जिम्मेदारी लेने से मैं कहीं पर काफी हेजिटेट करती थी उस समय। ये कुछ 4-5 साल पहले की बात है, व्हेन आई यूज्ड टू ओनली डू रीडिंग्स बट नॉट फैसिलिटेट एनी वर्कशॉप्स। बट देन अगेन ऊपर वाले की अपनी मेहर है, और अपने गाइड्स का अपना चमत्कार ही कह सकती हूँ, कि एक मेरे जैनी फ्रेंड है, उनकी वाइफ ने मुझे अप्रोच किया था कि आप हमें सिखाओ। आई हैड कम टू माय होम टाउन। उन्होंने कभी रीडिंग वीडिंग हम मुझसे कराई नहीं थी, लेकिन शी वाज लाइक कि आप सिखाइए कैसे करते हैं। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है, देखते हैं। बट देन दैट टाइम इट सो हैपेंड कि मेरी मदर भी तैयार हुई सीखने के लिए। सो द फर्स्ट बैच वाज विद माय मदर, with this friend's wife, and one more CA from my hometown. So that is how the whole journey started, Rashmi. So it was never intentional on my part, but as they say, कि divine design is much greater potent, has much greater potency than what we can perhaps define or intend. So I'm very, very grateful for the journey that has been happening so far. Wow, beautiful journey. तो मैम अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया था फेसबुक पे, आई वाज रीडिंग अबाउट योर प्रोफाइल, सो एकदम से क्वेश्चन आया बिकॉज आई न्यू यू एज रीना सेन, सो आई सॉ द वर्ड, तो ये भी क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको गाइडेंस मिली करने की, या प्लीज शेयर फ्रॉम रीना टू again हर एक when we are born, एक इंटरेस्टिंग चीज पहले बताती हूँ, देन आई विल कम टू द नेम थिंग। लाइक बहुत बार ऐसा होता है व्हेन पीपल कम फॉर अ रीडिंग, अन आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, बहुत बार ऐसा होता है मुझसे ऐसी चीजें बुलवाते हैं जो मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। एज इन उनको कुछ रिचुअल्स बता देंगे कि ये रेमेडी कर लीजिए और ये ऐसा है, या आपको यहाँ पे ये दान करना चाहिए, या इतने शनिवार ये कर लो। आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन एंड आई हैव नेवर बीन टू एनी ऑफ दीज थिंग्स। सो कभी कभार हेजिटेशन भी होता था, अब तो नहीं होता है। देन आई रियलाइज कि उनको उनकी कुंडली के हिसाब से उनके पंडित ने भी यही बताया हुआ है। सो दैट इज समथिंग which the clients would tell me कि you know what, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने भी मुझको बोला हुआ है कि ये विधि कर लेनी चाहिए, बिकॉज देयर आर सर्टेन दोषास, जैसे हम कहते हैं, कोई चीज है जो बैलेंस में नहीं है। सो इट्स इंटरेस्टिंग हाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो ये जो ईश्वरी का नाम आया, ये भी कुछ एक मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजर एक फ्रेंड है, उसके साथ में हम कुछ कन्वर्सेशंस कर रहे थे, और काफी समय से ये मेरे अंदर हो रहा था कि मेरा जो रीना सेन जो नाम है, जो मेरा आज भी लीगल नेम है और हमेशा रहेगा, उसके साथ की जो जर्नी है वो खत्म है, वो ओवर हो चुकी है। मतलब जो एज अ रीना सेन जो वाइब्रेशनली जो मेरा एजेंडा था, या जो मेजर मेरे काम थे इन विद दैट नेम, क्योंकि हर एक जिस समय में हम आते हैं वो भी एक कोऑर्डिनेट्स हैं टू हैव द perfect set of drama. You know, drama company, perfect set of things to do, to bring out the life lessons. जो चीज हम सीखने के लिए करने के लिए आए, उसके लिए जो चीजें चाहिए वो बर्थ के नाम में और बर्थ के टाइम में सब कुछ इंटीग्रेटेड है। तो रीना सेन वाली जर्नी हो गई थी खत्म। तो वो 2-2.5 साल से चल रहा था कि कुछ तो नाम दूसरा लेना है, करना है।
And it was in a very meditative state that my guide showed the name Ishwari. We were contemplating some other names, but it was shown that this is the name that you have to go ahead with. So it's a particular vibrational frequency that I am meant to now be aligned with, be an opening for, be a conduit for. So that is how this name has come into being. And yeah, it's a very empowering space for me, a very empowering sense of कहते हैं ना कि it's like an identity, a new identity which has been given because it's a new set of journey that is meant to be completed. All is in alignment with my life purpose in this life, but yes, this is one major कहना चाहिए उन्होंने करा लिया है again so that this work can happen. Wow, this is so beautiful, amazing. So, ma'am, many people are not aware of the term. Very few people know about this modality. How will you define or describe Akashic records in your words, in your language, so that people can easily... मैं इसको ऐसे कहूंगी कि जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बुक्स होती हैं, आप जाते हो, खोलते हो, देखते हो, पढ़ते हो. वैसे ही जो हमारी अलग अलग लाइफ टाइम्स की जर्नीज रही हैं, उनको भी कैप्चर किया गया है ईथर में, आकाश वाले तत्व में. क्योंकि जो बाकी पूरी कायनात बनी है टेक्निकली वो आकाश वाले तत्व में से ही आई है. मतलब चाहे वो अर्थ एलिमेंट हो, वाटर हो, फायर हो, जो भी हमारे बाकी के 4 तत्व हैं वो आकाश के गर्भ में से ही आए हुए हैं. सो हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है ना रश्मि, वो ईथर ही है. और साइंटिफिकली भी आप देखोगे तो एवरी सेल हैज आल्सो गॉट अ लॉट ऑफ एम्प्टीनेस इनसाइड ऑफ इट. हमको बोला भी जाता है आप शून्य में जाओ, आपका सब कुछ शून्य हो जाएगा, राइट? व्हेन यू आर जस्ट सिटिंग इन साइलेंस, इन नथिंगनेस, दैट इज व्हेन यू यूनाइट विथ योरसेल्फ, राइट? तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड है, दिस इज लाइक एन इम्प्रिंट. जैसे अगर कांच है, कांच के ऊपर आप अपना हाथ रख लें तो क्या होगा, अगर आपके हाथ में मॉइस्चर है तो उस कांच पे एक इम्प्रिंट बनेगा, राइट? जो थोड़े समय रहेगा और फिर चला जाएगा. उसी प्रकार से जो आकाशा है, जो एलिमेंट है, उस पे भी हमारे सारे एक्शंस, इंटेंशंस, सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं. एवरी सिंगल मोमेंट इन दिस रियलिटी, इन द अर्थ रियलिटी जहां पर हम सब हैं, ये सारा हम खेल रच रहे हैं, वहां का ये नियम है. जैसे ग्रेविटेशन एक रूल है, राइट? इट इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट अर्थ दैट देयर इज gravitation. Likewise, there is a fundamental rule of this reality that everything that we intend and act upon gets imprinted, gets captured. क्योंकि यहाँ पे सारा चीज कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे है. कोई भी चीज जो आपने किया उसका एक इफेक्ट है. देयर इज अ कॉज एंड देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस. तो उसको कैप्चर करने के लिए इट इज लाइक अ बिग डेटाबेस, big library, with each soul having its own record of whatever it has done over lifetimes. And whatever the future possibilities are there for that soul. तो जब हम रिकॉर्ड में कनेक्ट करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पास्ट जर्नी, पास्ट सो कॉल्ड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये भी जो लीनियर टाइमलाइन है वो हमारे ह्यूमन बींग्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए है. बट पर से टाइम इज इटर्नल. अगेन टाइम डज नॉट पर से हैव अ टाइमलाइन. पर इस रियलिटी में हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है. तो जो पास्ट में हो चुका है और जो प्रेजेंट में हो रहा है और जो फ्यूचर की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि फ्यूचर कभी भी कास्ट इन स्टोन नहीं है. Of course. It keeps on evolving. जो भी हम एनर्जी वर्जन बन जाते हैं उसके साथ में हमारा जो फ्यूचर का पॉसिबिलिटी का लिंक है, जो एल्गोरिदम है, वो लिंक्ड है और वो चेंज होता रहता है. सो आकाशिक रिकॉर्ड इज द होल रिजर्वॉयर. सुपर कंप्यूटर कर लीजिए या एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ हर एक की अपनी एक किताब है, एक सोल बुक है, आकाशिक रिकॉर्ड. Wow, so beautifully explained. So, ma'am, कौन-कौन ये मोडालिटी सीख सकता है, इसके रिक्वायरमेंट्स तो वो अपने डिस्कवर करता है और जिससे वो लोगों की हेल्प कर सकता है. तो इस
सी हम में से हर के पास में इंट्यूटिव पावर्स है, हम सबको ये एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगा था होने वाला है और हो गया, राइट? इंट्यूटिव नोइंग हम सबके पास में, डेजा वू की फीलिंग हम सबको कभी ना कभी होगी, ये पहले हुआ है, इस वाले लाइफ टाइम में मैंने किया ऐसा ध्यान नहीं आता, लेकिन ये हुआ है, ये पहली दफे नहीं हो रहा है। सो इंट्यूशन का जो एस्पेक्ट है, जो इंट्यूटिव नोइंगनेस का जो एस्पेक्ट है, वो हम सबके पास में है, और वो आता है अगेन द एलिमेंट ऑफ ईथर से, क्योंकि वो हमारा बेसिक डेटाबेस है और हम सब कनेक्टेड है। इट इज लाइक जैसे आप एक घर बनाते हो, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग करते हो, दिखता नहीं है क्योंकि अब हम सब इनविजिबल वाले मोड में चले गए हैं, लेकिन जैसे ही आप मेन स्विच ऑन करोगे, द होल रूम इज गोइंग टू लाइट अप, राइट? सो आपके पास में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है। लाइक दैट जो आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में हमारा रिलेशनशिप है, वो भी इनबिल्ट है। हमको फ्लैशेस आते हैं, हमको कुछ चीजें मिलती जाती हैं, लेकिन जब इसको थोड़ा सा कायदे से और तरीके से बैठ करके हम सीखते हैं या करते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, सो देन वी हैव एन एक्सेस। मैं इसको मोडालिटी नहीं बोलती हूँ रश्मि, because it is not really a tool. It is actually an access, एक चाबी है। आप ही की तिजोरी है और आपको सिर्फ एक चाबी मिल जाती है उसको खोलने के लिए और उसको समझने के लिए। आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो ना रश्मि, तो भी पॉसिबल है टू कनेक्ट विद द आकाशिक रिकॉर्ड्स, टू द गाइड्स एंड एवरीथिंग। बट व्हेन यू कम टू अ वर्कशॉप और यू लर्न हाउ टू एक्सेस इट, देन देयर इज अ वेरी क्लियर, होता ना कि आपको कार मिल गई, चाबी मिल गई, अब आप चलाओ, आपको जहां पे लेके जाना हो अपनी कार, तो वैसा है। सो व्हेन यू लर्न टू डू दिस, एंड एनीबडी कैन लर्न, जैसे ड्राइविंग हर कोई सीख सकता है, राइट? अगर आपका इंटेंशन है, सिखाने वाला है, तो आप सीख ही सकते हो ना। इट इज नॉट समथिंग विच इज लिमिटेड टू अ फ्यू एंड नॉट ओपन टू अदर्स। लाइकवाइज आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी पढ़ना, एक्सेस करना अपने लिए या फिर औरों के लिए is not limited to a select few, and yet I will say it happens when it is meant to happen. So when you are, it's like जैसे टीवी है, टीवी में हर एक चैनल पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, राइट? When you are at a particular frequency, then you tune into that channel and you watch the show. तो अगर आपके पास में टीवी नहीं है तो आप ट्यून इन नहीं कर सकते, अगर लैपटॉप है तो उसमें से हो सकता है कर सकते हो, बट जो भी है कुल मिला के व्हेन यू ट्यून इनटू दैट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, देन यू वॉच द शो। वैसे ही व्हेन यू ऑपरेट एट अ पर्टिकुलर वाइब्रेशन और यू लर्न the key to be at that vibration, then you connect with it and you do the work. That's it. लैपटॉप पर जैसे आप लॉग इन करते हो, अपना काम करते हो, लॉग आउट कर जाते हो, वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ भी anyone who learns it can log in, do the work and log off. That's Okay. how basic it is. Okay. So, मैम दिस इज माय क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो जितने क्वेश्चंस करे हमने वो नॉन आकाशिक रीडर्स के लिए किए, मतलब दोज हु आर कीन टू लर्न, और जो देखेंगे शायद वो जानते होंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में, जैसे टाइम इज एन इल्यूजन, राइट? इट इज इटर्नल, फ्यूचर सब इक्वल है, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस ऑल आर रिटन ऑन आवर सोल बुक, इन आवर आकाशिक रिकॉर्ड्स बुक। तो जब हम कुछ फ्यूचर का देख लेते हैं और उससे रिलेटेड रेमेडी तो पॉसिबल दैट हम अपना वो जो फ्यूचर आकाशिक रिकॉर्ड्स में रीराइट कर सकते हैं या उसको करके कुछ नया वर्जन इज इट? वेरी मच पॉसिबल रश्मि, क्योंकि बेसिकली इट इज लाइक एन एल्गोरिदम। आप चार्ट समझते हो ना, यस नो का चार्ट होता है। आपने एक चूज किया तो फिर से एक यस नो आया, फिर आपने यस चूज किया तो उसका एक, इट्स लाइक अ होल डिसीजन ट्री। हमारा जो लाइफ है, हमारा जो लाइफ पाथ है, वो भी कुछ वैसा है। कुछ चीजें ऑफ कोर्स हम प्रीडेस्टिन्ड करके आते हैं कि ये तो सीखना ही है, तो ये अगर सीखना है तो उसके तरीके 400 हो सकते हैं। ओके, अगर मुझे सीखने की जरूरत है कि पैसे को कैसे ऑनर करना है, अगर ये मेरा लाइफ का एजेंडा है, लाइफ पर्पस है इस वाले लाइफ टाइम में, तो इसको सीखने के मेरे 400 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और उसमें से जो भी जिस भी फ्रीक्वेंसी पे, जिस भी वर्जन पे मैं वर्क कर रही होंगी, मैं उसको उस तरीके से सीखूंगी। जैसे इस लाइफ टाइम में एक वर्जन मेरा ऐसा था वेयर
I ended up repaying debts on part of my ex-husband. Now it's not a blame game. You have to understand that I respect and honor him a lot. We are no longer together, but there has been a lot that has come from his side through him because it was meant to be. We are that way linked. तो पैसे करीबन करीबन 1 करोड़ मैंने कमाए भी, मैंने रीपे भी किया. Now that was one way of learning how to honor money. The other way could have been that we could have created a trust, we could have done a lot of charity, and we could have still ended up, making money and giving away money. तो वो भी एक तरीका हो सकता था. These are different options I had come with. But चॉइस करने में, कॉन्शियस चॉइस में वो हो गया जो होता चला गया. तो जो आप पूछ रहे हो ना कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी रेमेडी दिख रही है, पहली बात, कोई चीज की अगर रेमेडी दिख रही है इसका मतलब है वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी रेमेडिएबल है. इसका मतलब है उसके लिए कुछ किया जा सकता है, उसमें कुछ पॉसिबिलिटी और कुछ होने की. कुछ चीजों में ना रश्मि रेमेडी दिखेगी नहीं क्योंकि वो होना ही है. वो उस पॉइंट पे आ चुका है, उस टिपिक पॉइंट पे आ चुका है जहां पे अब रिवर्स गाड़ी नहीं जा सकती. तो वो होगा, वो तय होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप पे क्या होगा वहां पे अगेन आपके गाइड्स और आकाशिक रिकॉर्ड्स कैन हेल्प यू टू कुशन द फॉल. ओके, जैसे मैंने बताया कि अब like all my professional life I have earned and like I have done whatever with the money. So technically there should have been a wound around money, there could have been a trauma around money, but like with grace and with the work that I do, I never got into the victim mode. Rashmi, I was made to see कि भाई तुम्हारे कार्मिक डेट्स थे तो या तो पैसे से जाता या हेल्थ और पैसे के थ्रू में जाता. तो जो कुछ भी हुआ है आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. आई एम नॉट इन एंगर, इन बिटरनेस, इन एंग्स्ट अराउंड इट. ये कैसे हो पाया? बिकॉज माई गाइड्स were willing to show me and I was willing to see what the reality was. So this is how the whole journey with the Akashic Records has helped me to have a different context where I am not a victim and I'm also not a savior. तो मुझे बहुत क्लियर है कि जितना निमित्त मात्र होना लिखा है उतना ही निमित्त मात्र मैंने होना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. तो ये कुछ चीजें है जो इस काम की वजह से आई वुड से आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस. वाह. तो एक बार मैंने अपने रिकॉर्ड्स खोले थे तो उसमें आया था कि मेरे साथ अभी वाला है. मैंने खुद देखा somebody will try to betray me, ठीक है, और हुआ भी, लेकिन उसमें रेमेडी नहीं थी. उसमें मुझे सोल्यूशन दिया that it is for your good, after that you will rise and shine. एंड उसका जो इफेक्ट है वो तेरे ऊपर, मतलब उसका इफेक्ट, उसका काम थोड़े टाइम का आएगा. आफ्टर दैट यू विल रिकवर. एंड दिस हैपेंड word to word, scene to scene, and this was actually amazing. I saw there was no remedy for that, but it was a message that will be safe, don't worry, it is meant to happen. That is the thing. वही मैंने बोला ना कि कुछ चीजें एक टिपिंग पॉइंट में पहुंच चुकी होती है, वो होनी ही है. तो वो तो कई बार आपको रिकॉर्ड्स में दिखाएंगे भी नहीं कि होना है, क्योंकि वो होना ही है और दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, सो दे आर नॉट गोइंग टू शो इट टू यू. लाइक आई स्टिल रिमेम्बर एक क्लाइंट ने कराया था एंड उसके अगले दिन उन लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे और उनका अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ था और एक दिन पहले की रीडिंग में उसका कहीं कोई मेंशन नहीं था. सो मेरा अपने गाइड से था कि ऐसे कैसे किया, बताना चाहिए था. एंड दे वर लाइक, see, it was meant to happen and nobody was hurt. Okay, only the car got damaged but all the people were safe. So that incident had to happen. वो पैसे जाने थे, वो एक्सपीरियंस उनको होना था, लेकिन उनको कुछ उसमें करने को नहीं था. There was nothing which could have been done preventively. But they were safeguarded, they were going to be safeguarded. तो जो आपने शेयर किया ना कि हाँ ये होना है और हुआ, लेकिन आपको इम्पैक्ट नहीं हुआ जो अदरवाइज हो सकता था. अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते उस चीज के लिए, अगर आपको पहले से पता नहीं होता तो वो आपके लिए शॉक हो जाता. बट देन यू वर मेंटली गियर्ड अप, एम्पावर्ड टू डील विद दैट सिनेरियो. दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस ऑफन व्हेन यू वर्क विद द रिकॉर्ड्स. ऐसा भी होता है कि गाइड्स आपको डांटते भी हैं कभी कभी, क्योंकि मेरे को तो बहुत
Yes, I was asking one question, guys, कि why this happened to me. आपने बताया तो था, बट ये हुआ नहीं बताया, तो बड़ी डांट वाला बताया था कि तुम्हें बताना, this is your ego who want justification. Settle your ego first. Wise में सिर्फ ego जाती है, and don't be a victim of your circumstances. Be a responsible person. Move on with right. डांट पड़ी. I saw that कोई हक से जैसे डांट, stop, मतलब why do you want to go into that? I mean, that was so hilarious and very funny. जब अब सोचती हूँ बड़ा फनी लगता है. उस वक्त तो लगता था यार, गुरुज मास्टर्स जो गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स, दे आर वेरी लविंग, वेरी हम्बल. वो कैसे डांट सकते हैं, वो प्री नोशंस है ना. लेकिन लिटरली आई सॉ दैट डांट. तो क्या बता. What happens, it's like we are like kiddos for them, okay? जो हमारी डिवाइन टीम है उनके लिए तो हम किड्स की तरह हैं. They love us unconditionally. तो अगर एक बच्चा बार बार जाके कुकर में हाथ लगाएगा तो मम्मी क्या करेगी, थप्पड़ ही मारेगी ना फाइनली, कि तुमको बता रहे हैं तुमको समझ नहीं आ रहा है. So it's like that way the guides can be very stern at times, but they are never unkind. Right. If you look back, the words would have been maybe a little harsh, but they are never unkind. Right. They give us only what we can chew. मतलब मुझे ये भी पता है कि बहुत सी चीजें मुझे उस समय बताई हैं. अब 2014 से ये जर्नी ऑन है, 10 साल हो गए, बट कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे हाल के हाल में उन्होंने बताया. व्हेन दे न्यू कि जो ये वाला वर्जन है उसको पचा पाएगा, इसको डाइजेस्ट होगा, इसको इम्बाइब कर पाएगी, तो इसको अब बताओ. तो जो तुम पूछ रहे हो ना, वो होता है कई बारी, लाइक मेरे भी और साथ में जो ये काम करते हैं, कई बार होता है कि हाँ लड़ाई भी होती है गाइड से कि ऐसे कैसे, फिर से भाई ऐसे ही, बिकॉज यू आर चूजिंग, यू मेकिंग द चॉइस टू लर्न इट द हार्ड वे, सो व्हाट कैन वी डू, सो वी विल गिव यू व्हाट यू आर सीकिंग. दैट्स हाउ इट इज. या मतलब डांटते हैं नहीं, हमारा माइंड बोल रहा है. डांटते हैं मतलब, अगर वो देखोगे, वो अगर उस टोन में ना बोले ना, उस तरीके से अगर ना बताए तो वो जाएगा नहीं. मैं एक ना तुमको इसमें चीज बताती हूँ. एक बंदी मेरे से रीडिंग करा के, और फिर देन शी केम फॉर द वर्कशॉप. एंड व्हेन शी केम इन द वर्कशॉप सेकेंड डे शी सेज, यू आर सो डिफरेंट ड्यूरिंग अ रीडिंग एंड यू आर सो डिफरेंट नाउ. मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोली रीडिंग में तो आप बहुत ही खड़ूस थे. ओके, लाइक यू आर वेरी स्टर्न एंड योर वर्ड्स आर वेरी हार्श. वर्कशॉप में यू आर द मोस्ट काइंड पर्सन, यू मोस्ट कंपैशनेट. मैंने कहा आई एम रियली रियली सॉरी कि अगर तुमको हर्ट हुआ हो, क्योंकि मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं है. लाइक आई तो डोंट इवन रिमेम्बर. अच्छा, एक और चीज ये होती है कि मुझे कुछ भी मेमोरी नहीं होती. जो भी सेशन हो जाते हैं, जो आपने बताया, जो आपने पूछा, जो मुझसे बुलवाया, कुछ भी याद नहीं रहता. तो मैंने उस लड़की को बोला, यार आई एम रियली सॉरी अगर ऐसे हुआ है, तुम्हें बुरा लगा है. तो वो खुद बोलती है, नहीं पता है, अगर आपने वैसे नहीं बोला होता ना तो मैं सुनती नहीं. These were her words. कि अगर सेशन में आपने मुझे पुचकारा होता, पुचुकू किया होता, और हैड यू बीन वेरी जेंटल, मुझे वो मैसेज हिट नहीं होता. तो जो तुम चीज बोल रहे हो ना, कई बार गाइड्स द काइंड ऑफ टोन, द काइंड ऑफ लैंग्वेज, और यू नो, इट इज सो दैट इट हिट्स होम. So they don't mean to be unkind. They're really, it's like tough love on their part because they love us. कड़वी दवाई पी के तुम हील हो, मतलब उनके वर्ड्स इतने हार्श नहीं होते कि दिल पे लग जाए. नहीं. They will be stern. They will be stern. They will be very crisp. Correct. क्या होता है? So far जर्नी आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ कैसी रही, और आप उनको क्या मैसेज बताएंगे, और उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्यों सीखनी चाहिए आकाशिक रिकॉर्ड्स? एक तो मैं ये बोलना चाहूंगी, एंड आई एम ग्रेटफुल टू दोज हु कम फॉर रिपीट सेशंस, बिकॉज कई बारी कुछ चीजें जब आप कंसिस्टेंटली करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपको समझ आता है. सो देर आर क्वाइट अ फ्यू क्लाइंट्स हु come consistently for the work, and I have been witness to the phenomenal growth they have had. And I'm not talking about earning more money or having more status, including those, but apart from that, जो maturity या बोलना चाहिए जो ability to see life not
as a victim, but as somebody who is empowered to make choices and then be responsible to be okay with the consequences of the choices and to learn from that. I've seen that happening with a lot of people, and that is a pure delight, a pure state of joy for me, a pure state of gratitude to them and to the guides. क्योंकि फाइनली लाइफ में हमें क्या चाहिए? हमको सुकून चाहिए ना. आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप किसी को भी पूछो, फाइनली इंसान क्या ढूंढ रहा होता है? सुकून. और वो सुकून कब आता है? जब आप अंदर लड़ नहीं रहे हो, जब आप अंदर भिड़ नहीं रहे हो, जब आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, उसको लेके कलेश नहीं है, उसको आप समझने की क्षमता रखते हो कि हाँ अच्छा ये हुआ है, लेकिन इसके पीछे का स्टोरी क्या है? व्हाट इज रियली हैपनिंग? how is it empowering me? How is it growing me? When you're able to see that, तो फिर कोई भी चीज बैड नहीं होती. It's like there is a silver lining to every cloud. Then there is not just a black cloud and oh it's a gloomy day. Then you realize कि नहीं नहीं, बारिश के अपने फायदे हैं. So this is something which I've seen happening for many, and those who come for the workshops, स्पेशली अब जो पेडागॉगी है और अब जो वर्जन डाउनलोड हुआ है और लोगों के साथ शेयर हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ हीलिंग ऑल्सो दैट टेक्स प्लेस very automatically, very organically, and there are certain symbols, there are certain keys again which have been shared, and people are using it to unclog, unblock, dismantle a lot of belief systems, because our beliefs create our reality. तो जब आप उन बिलीव्स को बहुत फास्ट डिसमेंटल कर पाते हो तो आपके लाइफ में चेंजेस भी बड़े फास्ट आ सकते हैं. और अभी समय भी वैसा है, समुद्र मंथन वाला ही है कि विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा. So you have to be prepared for both. So the access when you come to a workshop, वो 3 दिन में भी बहुत कुछ होता है. There's so much of purging, cleansing, realizations that hit home, completions that happen. So a lot of work happens. And post the workshop, as I said, कि भाई कार आपको मिल गई, चाबी आपके पास है, अब आपको दुनिया में जहाँ घूमना हो, जहाँ जाना हो, आप जाओ. So likewise, when you have the key and the access, then it's up to you. What and how far and how deep are you willing to dive? How far are you willing to work? So oaths and vows हैं, curses, hexes, ancestral lineage issues हैं, gifts रहते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं. और रीडिंग के दौरान या वर्कशॉप के दौरान वो डिस्कवर होता है कि अच्छा ये भी गिफ्ट है. So I have been lucky to witness, participants suddenly realizing कि अच्छा वो तो मंडला भी पढ़ सकते हैं, मतलब मंडला के थ्रू में भी रीडिंग हो सकती है, या प्लांट कम्युनिकेशन है, एनिमल कम्युनिकेशन है. They have not learned, but suddenly they find those faculties getting activated. So वो कहते हैं ना प्यार के साइड इफेक्ट्स, तो वैसे ही वर्कशॉप्स के भी बड़े प्यारे से कई बार साइड इफेक्ट्स रहते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है टू विटनेस, टू नो अबाउट. So if you are looking for connecting and owning yourself, empowering yourself, then these workshops can be a very good space to do that. Amazing. Because ma'am, ये भी बताओ how people can connect with you. इस वीडियो के से related, तो I know that many people will try to connect with you through messages, but other ways to connect with you, reading session for to learn Akashic records. So please share your Best details. is to WhatsApp me. Best is to WhatsApp me on my phone number. So you want to give it here in the video or in the link, wherever. Like I am good to spell out the number here too, or whichever way. So you can. Yeah. I So think remove हो जाएगा, अभी बाद में लिख दूंगी. okay, sure. So it is 9870495603. WhatsApp करेंगे ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट कॉल करने से अच्छा है. WhatsApp अगर करेंगे, I can respond at my own pace, because sometimes in the middle of the session or workshop I can't immediately take a call or respond. So give me the opportunity to get back to you properly by dropping in a WhatsApp message. I would be very happy to be of any support, anything that I can be for others, because मेरी journey में भी मुझे बहुत support मिला है, and this has been continues to be a fantastic access for me.
So more the merrier, more the better. Yes, thank you. Thank you so much, ma'am, for your precious time and accepting my invitation to come on live. Thank you. Thank you. Thank you so